الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 24 نومبر 2020 بروز منگل ہے. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ والضحیٰ کی آخری آیت پڑھی ہے اور گلدستہ احادیث خاتم الانبیاء میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھا ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں حق اور سچ بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو تو پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو صرف نبی نہیں امام الانبیاء بنایا ہے. نبی کا مطلب ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، امام الانبیاء کا مطلب ہے جس کا کلمہ امت بھی پڑھتی ہے، امت کے انبیاء بھی پڑھتے ہیں. اور امام مقام میں اس جگہ ٹھہرا ہوتا ہے جس جگہ امام ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے. ہمارے نبی پاک امام ہے تو اسی لیے حضور پاک کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، انبیاء میں حضور پاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کو رب نے وہ رتبے، وہ مرتبے، وہ معجزے، وہ حیثیتیں دی ہیں جن کا مقابلہ اس کائنات میں کہیں نہیں ملتا. قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب و رحمت نازل فرمائے. حضرت نانوتوی نے ایک جملہ شعر کی زبان میں اپنی کتب میں یوں لکھا ہے، فرماتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمندارند کہ تو تنہا داری. کہ ہم یہ بات مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کو حسن ملا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک کا معجزہ ملا تھا. وہ معجزے، وہ مرتبے، وہ درجے، وہ مقامات اپنی جگہ، لیکن جو رتبہ آپ کو ملا ان جیسا کسی کو نہیں ملا. آپ باغ میں جائیں، باغ میں آپ نے ایک پھول سونگنا ہو، رات کی رانی سونگے آپ کی مرضی، گلاب سونگے آپ کی مرضی، آپ کوئی اور پھول چنبیلی کا سونگے آپ کی مرضی. آپ چاہتے ہیں میں سارے پھولوں کو یکجا کر کے ایک حصے میں سونگوں، اس کے لیے پھول نہیں پھول دستہ چاہیے، گل نہیں گل دستہ چاہیے جس میں سارے پھول اکٹھے ہوں. علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھول، اکٹھے ہوں تو گلدستہ. میرے دوستو اسی طرح سمجھو، اگر علیحدہ رتبے دیکھنے ہوں، مرتبے دیکھنے ہوں، درجے دیکھنے ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو رب نے صفی اللہ بنایا ہے، نوح علیہ السلام کو دیکھو نجی اللہ بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کلیم اللہ بنایا ہے، حضرت یوسف کو دیکھو صدیق اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیکھو روح اللہ بنایا ہے. آپ رتبے میں مرتبہ دیکھیں کہ آگ میں کوئی جل نہ سکے تو حضرت ابراہیم کو دیکھیں، چھری کے نیچے کوئی ذبح ہو نہ سکے تو حضرت اسماعیل کو دیکھیں، اس کا بیٹا اس سے غائب کر دو، 40 سال رو کے وب یزت عینا، آنکھیں سفید ہو جائیں، لیکن وہ اپنے بچے کی قمیض کو آنکھوں پہ رکھے تو اس کی آنکھیں واپس آ جائیں. تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، بھائی کنویں میں پھینکے اور اس کنویں سے اٹھا کے تخت شاہی پہ رب بٹھا دے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، حضرت زکریا عمر 120، بیوی کی عمر 90 سال، اولاد مانگے رب العزت اولاد عطا کر دے. یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو دیکھو، حضرت
मूसा अलैहिस्सलाम को देखना तो फ़िरौन से मुकाबला, फ़िरौन से हज़रत मूसा पाक की गुफ्तगू ये नज़र आए तो आप देखो रब्बुल इज़्ज़त ने करम किया, 6 लाख फ़िरौनियों को डुबा के मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह दे दी। 300 अलवाह में जिसे तौरात मिली हज़रत मूसा को देखें और रब्बुल इज़्ज़त ने मुखालिफ को शक्ल बदल के फांसी पे और हज़रत ईसा को आसमान पे चढ़ा दिया तो शरीयत ईसवी को देखें। अगर आपने देखना हो कि परिंदा जाते हुए बात सुने, कलाम सुने, गुफ्तगू सुने और बैठ जाए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत को देखो। अगर आप चाहते हो कि 1 महीने का सफ़र तख्त शाही उड़ के सुबह से शाम, शाम से सुबह करे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो। अलग अलग देखोगे इन अंबिया के मर्तबे, इन अंबिया के मोजज़े, इन अंबिया के दर्जे, इन अंबिया के रुतबे नजर आएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं हम इन तमाम रुतबों को यकजा, तमाम मर्तबों को यकजा, तमाम दर्जों को यकजा, तमाम मोजज़ों को दर्जा देखें, यकजा देखें तो आमना के दुर्र यतीम महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका रुतबा मकाम वो है जो इन सब से यकजा अल्लाह ने इन शख्सियात को अता किया है। इसलिए कासिमुल उलूम कहते हैं हज़रत यूसुफ का हुस्न अपनी जगह, हज़रत मूसा का असा अपनी जगह, हज़रत ईसा का दम वाला मौजज़ा अपनी जगह। हुज़ूर पाक एक तरह है। अब सवाल उठेगा हज़रत नानोतवी पे, हज़रत यूसुफ के हुस्न को देख के तो मिस्र की लड़कियों ने उंगलियां काटी थी। कुरान करीम कहता है वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। क्या हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अगर उनसे हुस्न में बढ़ के हैं, खूबसूरती और जमाल में बढ़ के हैं? हमें दिखाओ हुजूर को देख के किसी ने एक उंगली भी काटी हो। अगर काटी हो तो हम मान जाएंगे। उम्मुल मुमिनीन सिद्दीका बिन्त सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं बात ये नहीं है, अगर बात की गहराई में उतर के देखो तो आपका ये एतराज हवा मंसूरा होके हवा में उड़ जाएगा। कहते हैं वो कैसे? कहा लव्वामी ज़ुलैखत लौ रअयना जबीनहु लअथरना बिलक़ती क़ुलूबहुन्ना अलल यदी। तुमने मिस्र में औरतों के हाथ कटने को तो देखा है, हुज़ूर पाक पे कुर्बान होने वाले सहाबा की गर्दनों को नहीं देखा। अगर तुम इन गर्दनों को देखती तो तुम्हें एतराज का मौका न मिलता। मेरे दोस्तों में यहां एक सवाल करने लगा हो, हजरत अम्मा जान आयशा ये बात क्यों फरमाती है कि सहाबा कराम ने अपने दिल काटे थे हुजूर पाक को देखकर? हालांकि अगर उंगली काटने को देखें तो बात समझ आती है, दिल काटने को देखें तो बात समझ नहीं आती, क्योंकि मिस्र की लड़की के हाथ में फल था, छुरी चली थी, हाथ के फल के बजाय हाथ कट गया था। और सहाबा कराम ने कोई हाथों में फल लेकर तो हुजूर के पीछे अपने दिल नहीं काटे थे। तो अम्मा ने ये क्यों कहा? अम्मा जान आयशा की बात को समझने के लिए एक बात को समझना जरूरी होगा, वो ये है अम्मा जान उसूल की बात कर रही हैं, बुनियाद की बात कर रही हैं। बुनियाद कैसे है आप समझते हैं? चश्मे से पानी उबलता है, नहर में पानी पहुंचता है, समंदर से पानी निकलता है, दरिया और नहरों में पहुंचता है। चश्मा असल है, नहर नस्ल है। असल कहते हैं बुनियाद को, नस्ल कहते हैं जो उससे जारी हो। अगर दादा कौम कुरैश से है तो पोता भी कुरैशी होगा, दादा आवान है पोता आवान होगा, दादा सैयद हाशमी है पोता भी सैयद हाशमी होगा। क्यों? दादा असल है, पोता नस्ल है। बड़े असल होते हैं, छोटे नस्ल होते हैं। असल से बात चलती है, नस्ल में बात पहुंचती है। अगर नहर के पानी को देखो तो इसने अपने पेट से नहीं लिया, अपनी जेब से नहीं लिया, अपनी जात से नहीं लिया। यह नहर में पानी किसी चश्मे से आया है तो चश्मे से पानी निकला, नहर में पानी पहुंचा। पानी के लिहाज से चश्मा असल है और नहर नस्ल है। इसी तरह बंदे का एक जिस्म है, इंसान के जिस्म में जो असल है उसे दिल कहते हैं, जो इस असल की नस्ल है उसे उंगलियां कहते हैं। क्योंकि दिल में आया मैं दाएं देखूं तो हाथ दाएं गया, दिल में आया मैं बाएं देखूं तो हाथ बाएं गया, दिल में आया मैं इसकी गिरफ्त करूं तो यूं पकड़ लिया, दिल में आया टिश्यू उठाऊं तो यूं उठा लिया। असल दिल हाकिम है, ये तो नस्ल है, ये उसके मामूर हैं। दिल आमिर है, उंगलियां और हाथ मामूर हैं। दिल आमिर है, हाथ और पांव मामूर हैं। दिल हाकिम है, कान और आंखें और जुबान मामूर है। दिल कहेगा तो बोलेगी जबान, दिल नहीं कहेगा तो जुबान ने नहीं बोलना। दिल कहेगा तो आंख देखेगी, दिल नहीं कहेगा तो हाथ ने आंख ने
नहीं देखना। इसी तरह दिल कहेगा तो बंदा चलेगा, दिल रोक देगा बंदा रुक जाएगा। ऐसे दिल कहेगा तो हाथ पकड़ेगा, दिल नहीं कहेगा तो हाथ नहीं पकड़ेगा। पता चला दिल आमिर है, हाथ मामूर है। दिल आमिर है, जिस्म मामूर है, दिल असल है, बाकी जिस्म की चीजें नस्ल है। हजरत अम्मा फरमाती हैं, अगर नबुव्वत के मंजर को देखो, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुतबा मर्तबा मकाम और मौजज़ा और दर्जा वो मिला है जो असल है। असल नबुव्वत इनको मिली है, हुस्न इनको मिला है, मकाम इनको मिला है, दर्जा इनको मिला है, असल नबुव्वत इनको मिली है। इनकी वजह से हजरत आदम से ईसा तमाम अंबिया को नबुव्वत के ताज से ताजवर किया गया, तमाम अंबिया को नबुव्वत के ताज से सरफराज किया गया, रिसालत के ताज से ताजदार किया गया। इनको मर्तबे मिले, उम्मत के नबी बने। वजह हुजूर की जात थी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, हुजूर न होते आदम न होते, अगर आदम न होते तो औलाद आदम न होती, औलाद आदम न होती तो अंबिया न होते। तो अंबिया है औलाद आदम की वजह से, औलाद आदम है हजरत आदम की वजह से, हजरत आदम है हुजूर पाक की वजह से। का असल हुजूर है, बाकी तो नस्ल है। असल हुजूर है, बाकी तो वजह है। असल हुजूर है, बाकी तो ताबे है। पहले हुजूर को नबुव्वत और दर्जे मिले, इनसे निकाल के बाकियों को मिले। नबुव्वत भी एक दर्जा, इनसे निकल के बाकी को, रिसालत भी एक दर्जा, इनसे निकल के बाकी को, पैगंबरी भी एक दर्जा, इनसे निकल के बाकी को। तो अम्मा फरमाती है हुस्न भी एक दर्जा है, हुस्न भी एक मर्तबा है, हुस्न भी एक वस्फ है। ये भी हुजूर में सबसे अतम है। इनसे निकल के हजरत यूसुफ को मिला है, नबुव्वत में असल हुजूर है, नबुव्वत में शाख हजरत यूसुफ है। हुजूर पाक असल है, हजरत यूसुफ नबुव्वत की शाख है। ऐसे जिस्म में दिल असल है, उंगलियां शाख है। उन मिस्र की लड़कियों ने असले नबुव्वत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं देखा था, उन्होंने शाख नबुव्वत हजरत यूसुफ इब्न याकूब को देखा था, इसलिए शाख बदन अपनी उंगलियों को काटा। असले नबुव्वत हुजूर को देखती तो असले बदन अपने दिल को काट लेती। ये बताया समझाया जा रहा है कि नबुव्वत में असल हुजूर की जात है, इसकी वजह से बाकियों को रुतबा मिला है। तवज्जो, हजरत मूसा पे आते हैं। नंबर 2, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नबुव्वत का दर्जा अपनी जगह, लेकिन मेरे पाक पैगंबर का उनसे बढ़ के है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में आता, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है। हजरत मूसा से रब ने पूछा मा तिल कभी अमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? काला ही आसाई, अल्लाह ये मेरी स्टिक है। ए मेरे मौला ये मेरा डंडा है, ये मेरा आसा है। मूसा क्या कर रहे हो? अतवक्कउ अलैहा, कभी टेक लगाता हो, फिर क्या करना है? वह अवश्य बिहा अला गनमी, बकरियों को इससे हाँक लेता हो, फिर क्या करना है? वलिया फीहा मारिब उखरा, मेरे और उमूर है, हाजतें हैं, काम है, मैं इस डंडे से, इस असा और स्टिक से सर अंजाम देता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में यह डंडा मुबारक मौजूद है। कौम मूसा पहुंची है, दरियाए कुलज़म पे पहुंची है। दरियाए कुलज़म पे पहुंच के कौम ने कहा इन्ना लमुद्रकुन, हम तो मर गए, आज पीछे फिरौनी है, आगे पानी है, हमारा क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ फज़रिब बिअसाकल हजर, यह डंडा है, इसे इस्तेमाल कीजिए, आप पत्थर पे मारिए। हजरत मूसा ने दरिया की मुंडेर पे पड़े पत्थर पे अपने डंडे को दे मारा। फनफजरत मिन हुस्नता हशरत आईना, 12 कबीले थे, 12 कौमें थी, हर कौम का अपना रास्ता, हर कौम का अपना पुल, पानी में रास्ता बन गया, हर कौम अपने रास्ते से गुजरी, वो निजात पा गई। अल्लाह फरमाती है वअगरकना आल फिरऔना व अंतुम तंजुरून, मूसा की कौम अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम देख रहे थे, तुम्हारा दुश्मन डूब रहा था, तुम्हें नजर आ रहा था, फिरौनी गर्क हो रहे थे, फिरौन समेत फिरौनी गर्क हो गए थे। मेरे दोस्तों, हज़रत मूसा का मौजज़ा है, डंडा दरिया पे लगा है, दरिया 2 टुकड़े नहीं 12 टुकड़े हुआ है। अगर कोई कहे आप कहते हो हुज़ूर पाक असल है, तो मुझे दिखाओ क्या कभी मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने भी कोई ऐसा डंडा मारा हो जिससे दरिया टुकड़ों में बदल गया हो? हमने कहा जी नहीं, हमारे नबी का जब मकाम आला है, मर्तबा आला है, दर्जा आला है, रुतबा आला है, तो मौजज़ा भी उनसे बढ़ के
کے आला है, मुआजिजा भी उनसे बढ़ के अशरफ है, मुआजिजा भी उनसे बढ़ के अकरम है, मुआजिजा भी उनसे बढ़ के एजाज वाला है, इकराम वाला है, एहतराम वाला है। जी वो कैसे? मक्का के काफिर मक्का में ठहरे हैं, अबू जहल एंड कंपनी को बताया, समझाया, सुनाया गया कि अगर जमीन पे जादू पढ़ोगे, जमीन पे जादू असर करेगा। अगर कोई जादूगर हो वो हिप्नोटाइज करके, जादू करके बंदों का ज़हन काबू करता है, उस जादूगर को फेल करने का, उस जादूगर को ज़ेर करने का एक ही तरीका है, उसे कहो आसमान के चांद पे, आसमान के तारे पे, आसमान के सैयारे पे या आसमानी किसी चीज पर अपना जादू चला के दिखा। जादूगर मर जाएगा, वो जहर का ड्रम तो पी जाएगा लेकिन आसमान पे उसका जादू नहीं चलेगा। अगर तुम कहते हो तुम्हारा ये अब्दुल्ला का बेटा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, इसके पास जाओ, इसे कहो चांद को दो टुकड़े करके दिखा। मक्का के काफिर आए हैं, अल्लाह के रसूल के पास आए हैं, आप हमें चांद को दो टुकड़े कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो मेरे अल्लाह के काम है। बात क्या है? उन्होंने कहा मैं आपकी नबुव्वत पे शक है, आप जादूगर होंगे। अगर जादूगर होंगे तो आपका जादू आसमान पे नहीं चलेगा, आप अल्लाह के नबी होंगे और अब आपकी बात को मान के चांद को टुकड़े कर देगा। सूरत कमर कहती है, 27 पारा बताता है, रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने हाथ उठाया, इक्तरबतिस साअतु वनशक्कल कमर, मेरे पाक पैगंबर ने उंगली अल्लाह के नाम से उठाई, चांद दो टुकड़ों में बदल गया। मैंने कहा सुनो, हजरत मूसा नबुव्वत में नस्ल है, हुजूर नबुव्वत में असल है, हुजूर नबुव्वत का मरकज है, हजरत मूसा नबुव्वत की शाख है, हुजूर पाक नबुव्वत में बुनियाद है, हजरत मूसा नबुव्वत की ब्रांच है। हजरत मूसा को नबुव्वत मिली है, हुजूर के वास्ते से मिली है। मेरे पाक पैगंबर का रुतबा भी हजरत मूसा से बढ़ के है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरिया दो टुकड़े किया था तो 3 बातें साबित थी। नंबर 1, हजरत मूसा भी जमीन पर थे, नंबर 2, दरिया भी जमीन पर था, नंबर 3, डंडा जाकर दरिया को टच हुआ, दरिया को लगा। 3 बातें हुई। लेकिन आओ मेरे पाक पैगंबर की दरबार में, हुजूर जमीन पर है, चांद आसमान पर है, हुजूर पाक जमीन पर है, हुजूर का हाथ भी जमीन पर है, हाथ उस चांद को नहीं लगा। बगैर लगे मेरे पाक पैगंबर के मौजज़े ने चांद को टुकड़ों में बदल दिया। वो नबी है तो ये उससे बढ़ के नबी है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बहसादारी आंच खूबा हमदारन के तू तन्हादारी। हजरत ईसा की जात पे आते हैं। हजरत ईसा का मौजज़ा ये है, उनफिक़ु तैर बिइज़्निल्लाह। रब का कुरान कहता है मिट्टी से बने हुए परिंदे को उठाते, वो उसमें फूंक मारते, फूंक मारने से मिट्टी का परिंदा जिंदा होता, गोश्त और पोस्ट का बनता, खून का बनता, जिस्म जान का बनता, परवाज शुरू कर देता। हजरत ईसा का मौजज़ा था। अब कब्र पे आते, मुर्दे के ऊपर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो रब के हुक्म से खड़ा होता। अगर हुजूर पाक का दर्जा ज्यादा है और यकीनन ज्यादा है तो दिखाएं हुजूर पाक ने ऐसा किया हो। मैंने कहा सुनो, हजरत ईसा की वजह से रब ने उस शख्स में रूह दोबारा मुकम्मल दाखिल की है। जिस शख्स में किसी जमाने में रूह थी अब कब्र में है, सिर्फ रूह का ताल्लुक है। इसमें दोबारा रूह आना इतनी मुश्किल नहीं है जितनी उस जगह रूह आए जहां पहले आई ही नहीं थी। मेरे पाक पैगंबर की वजह से उन जगहों में रूह आई है जिनमें रूह थी नहीं। कलाम आया है जिनमें कलाम जिनमें कलाम था नहीं। उन जगहों में बोल आए हैं जिनमें पहले बोल थे नहीं। आप कहेंगे कैसे? अबू जहल ने हाथ में कंकर लिए, पीछे छुपाए, हुजूर पाक के पास आया, आकर कहा बताओ मेरे हाथ में क्या है? मारा डीआई खान के दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने भी तो सोचा होगा अगर मैं कह दूं तेरे हाथ में क्या है, ये कहेगा तुक्का लग गया, ये कहेगा अंदाजा फिट हो गया। मेरे पाक पैगंबर बोलते हैं, रब के हुक्म से बोलते हैं। सूरत नजम आयत नंबर 3 आयत नंबर 4 बताती है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। पैगंबर का मौजज़ा ये है वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से, अल्लाह की वही से, वही खुदाबंदी से बोलते हैं। मेरे पाक पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से बोला, अबू जहल मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है? ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो साहिर भी बता देगा, काहिन का तुक्का चल जाएगा वो भी बता देगा। ये दर्जा छोटा है, तुम्हारे नबी की परवाज इससे कहीं ज्यादा है, तुम्हारे नबी का मर्तबा इससे कहीं बढ़ के है। हुजूर पाक ने रब से मांगा, रब्बुल इज्जत ने बताया वो पत्थर
और बोल पड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह। इससे पता चला हुजूर पाक की वजह से रूह उन पत्थरों में आई है जिसमें कभी आई भी नहीं थी। हजरत ईसा का मौजज़ा, उसमें रूह आई जो कब्र में पड़ा हुआ था, और रूह का ताल्लुक तो था, मुकम्मल आई रूह है। अगर ये दर्जा है हुजूर पाक की वजह से उस पत्थर में बोलना आया है जिसमें पहले था ही नहीं, ये उससे बढ़ के है। इसलिए अगर वो नबी हैं तो ये उससे बढ़ के हैं। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आते खूबा हमदारंद के तू तन्हादारी। इसलिए कासिम उलूम मौलाना नानोतवी फरमाते हैं उनके दर्जे मर्तबे मौजे मकाम और रुतबे अपनी जगह, लेकिन उन सब के मौजे तेरे अंदर। ये मकाम और मर्तबा है हमारे पाक पैगंबर का। मैं एक बात आपकी खिदमत में मजीद कहता हूं, इतने दर्जे वाला नबी रब ने हमें बगैर मुतालबे के दिया है, रब ने हमें बगैर दरखास्त के दिया है, रब ने हमें बगैर एप्लीकेशन के दिया है, बगैर तलब के दिया है। खालिसतन एहसान इम्तिनान फजल रहमान है, खालिसतन। इसका शुक्रिया यह है हम अपनी जिंदगियों में नबी की सुन्नतों को आम करें, नबी के तरीकों को आम करें, नबी के अवामिर और नवाही को आम करें, पैगंबर के अहकामात और तालीमात को आम करें। जरूरत है आज जलसों में आए, जी वाह वाह मौलवी ने बयान किया, जी वाह वाह नात खान ने नात पढ़ी, जी वाह वाह सना खान ने सना खानी की, जी वाह वाह हो गया। इसका फायदा नहीं है जब तक आपके और मेरे अमल में नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। और इसके साथ मैं एक बात कहूंगा, अपनी जबानों को अहले हक के खिलाफ बोलने से रोको। आज बहुत एक अजीब हालत है, जिसका भी बस चलता है उलमा पे बोल पड़ते हैं, जिसका बस चलता है मौलवियों की कीता है, मौलवियों ने क्या किया है। जो शख्स बच्चा पैदा होने के बाद अपने बच्चे के कान में अजान न दे सके, इस बच्चे के फौत होने के बाद उसका जनाजा न पढ़ सके, इस बच्चे के शादी के वक्त उसका निकाह न पढ़ सके, ये भी मौलवियों पे बोलता है। आप अल चिट्टो मिनल डग्गर होवे तो वालावना मौलवी ते पौंदा। सुने मैं एक जुमला कहता हूं, मौलवी के आगे ना हुआ करो, मौलवी के पीछे रहा करो। मैं दलील देता हूं, नमाज में जो मौलवी के पीछे होते हैं वो जिंदा होते हैं मुर्दे होते हैं, और जनाजे में जो मौलवी के आगे होता है तो याद रखा है मौलवियों तो गुबद के, ये याद रखना, मौलवी मजाक नहीं है। हदीस पाक में सदका बला को खा जाता है, और सदका कौन खाता है? बलाओं को सदके खाते हैं, और सदके को कौन खाता है? मौलवी। तो ये बला का प्लस बला है, इसे ख्याल करके चलना, ठीक है। उलमा के मैं बाजू का तराना होता, एक बंदा मुझे कहने लगा मौलवियों ने असम्बली में बैठकर क्या किया है। मैंने कहा मौलवी ना होते ना, आज कादियानियों को काफिर अकलियत करार किसी ने नहीं दिलवाना था। ये उलमा की वजह से कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की बरकत है। और आज भी उलमा ने ऐसा काम किया है, अंग्रेज से भी वो टकराए थे मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और अंग्रेज के आलाकारों से भी टकराए हैं मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सिंध में डॉक्टर खालिद सुमरू रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद मौलाना राशिद ने कारनामा किया है ना। पाकिस्तान से पहले जो मसाजिद बनी थी हुकूमत उन्हें गिराने पे आई, और ये शख्स सदे सिकंदरी बना, जुर्रत और हिम्मत से बात की। अदालत ने कहा, वो अदालत गए, अदालत ने कहा जी हमने तो नहीं कहा। उन्होंने दोबारा उसको बाकायदा उसको ख़त्म कर जो किए थे ना, उनको दोबारा बनने का हुक्म जारी किया। और आज एक जगह मुझे दोस्त ने मैसेज किया, उसको लिखा हुआ था कि वहाँ अदालत में किसी ने पूछा कि सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बनी हुई थी एक, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बनने से पहले थी, और इस्लामी रियासत होती वही है जो इस्लामी रियासत खुद मस्जिद को जगह दे। अगर हमारे दिफा के लिए इदारों को जगह हुकूमत देती है, और देनी चाहिए, हमारे फोर्सेस को हुकूमत जगह देती है, महकमा ज़राअत को देती है, महकमा इरिगेशन को देती है, अनहार के महकमों को देती है, बाकी और जगह ऑफिस के लिए देती है, तो चंद गज जमीन अल्लाह के घर को देना कौन सा मसला है? चंद गज जमीन अल्लाह के घर में देना। रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हाई कोर्ट से फतह दी है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। ये उलमा ने नहीं किया। मौलवी दीन के नाम पे वोट लेते हैं तो करता भी तो है ना, करता भी तो। हमारे लोग पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, मैं बाज़ों का हैरान होता हूं। एक बात जहन में रखना, आलिम जिस किरदार में है उसकी तायीद ही करनी चाहिए। वो आलिम
تدریس کر رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے دعائیں کریں, یہ نہیں ہے اس کی مخالفت کریں. وہ عالم خانقاہ میں بیٹھ کے ذکر اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے, اللہ اللہ کر کے لوگوں کو دلوں کو پاک کر رہا ہے, تو میں نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعائیں تو کرو نا. وہ عالم صحابہ کرام, اہل بیت عظام, فقہائے کرام, علماء کرام کی عظمت کے لیے کام کر رہا ہے, تم نہیں کرتے تو اس کے لیے دعا تو کرو نا. وہ عالم اسلامی سیاست میں بیٹھ کر قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی طرح امت مسلمہ کے قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے, آپ نہیں کر سکتے تو اس کی مخالفت تو نہیں کرو نا. یہ یاد رکھیں, میں ہر جگہ کھلی بات کرتا ہوں, میں واضح بات کرتا ہوں کہ ہم پوری دیوبندیت کے نام لیوا ہے, ہم ادھوری کے نہیں. دعوت و تبلیغ بھی ہمارے پاس ہے اور حق والے مجاہدین بھی ہمارے پاس ہیں, حق کے علماء مدرسین بھی ہمارے پاس ہیں, صوفیاء اور مشائخ بھی ہمارے پاس ہیں, مناظرین بھی ہمارے پاس ہیں, سیاستدان بھی ہمارے پاس ہیں. ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں, ادھورے دین کی بات نہیں کرتے. جب دین کا حصہ ہے, سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا سیاست دین کا حصہ ہے, میں نے کہا مولوی کے سر پہ پگڑی اس وقت بنتی ہے جب وہ مسلم شریف پڑھتا ہے, اور صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا انبیاء کرام جو آتے تھے وہ نبی بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا, یعنی نہ نبی آئے گا نہ نبی بن کے کوئی سیاستدان آئے گا. اب میرے رہنما جو آئیں گے وہ میری طرف سے خلفاء ہوں گے, وہ خلفاء حضور کے نائب بھی ہوں گے, سیاستدان بھی ہوں گے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. تو یہ فریضہ کون سر انجام دے گا؟ ہم بعض اوقات حیران ہوتے ہیں, حضور کی وراثت سمجھتے ہیں مسجد کی مصلے کو, ادھر ہم کسی جاگیردار وڈیرے کو نہیں آنے دیتے, کہتے مولوی. ممبر کو حضور کی وراثت سمجھتے ہیں, ادھر کسی دنیا دار کو نہیں آنے دیتے, کہتے دیندار مولوی آئے گا. نکاح, جنازہ, جمعہ, عیدین, نماز, خطبے کے لیے حضور کی وراثت سمجھتے, کہتے اور کوئی نہیں مولوی آئے گا. لیکن جب سیاست کا میدان آتا ہے نا, ان مولویوں میں کیا کام ہے؟ کام ہی مولوی کا بیٹا. یہاں علماء نہیں ہوں گے نا تو یاد رکھنا کبھی دین کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. مدرسے کے ذریعے دین پڑھا جاتا ہے, خانقاہ کے ذریعے دین سمجھا جاتا ہے, دعوت تبلیغ کے ذریعے دین پھیلایا جاتا ہے, دعوت جہاد کے ذریعے دین کو نافذ کیا جاتا ہے, اور دعوت سیاست کے ذریعے دین کی حفاظت کی جاتی ہے. تو ہم دین کے تمام داعیوں کی بات کو مانتے ہیں. اپنی زبانوں کو علماء حق کے خلاف بات کرنے سے روکیں. میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. ایک شخص ایک دن علامہ خالد محمود PhD لندن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کہنے لگا کہ حضرت علی حضرت معاویہ کی آپس پہ جنگ ہوئی تھی, حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو علامہ خالد محمود نے فرمایا پھر راضی نامہ ہو گیا تھا نا, اب تو اعتراض نہ رہا, تو کوئی ایسا سوال لا کہ حضرت معاویہ سے یہ کام ہوا تھا اور وہ صحابی نہیں رہے تھے, ایسی کوئی بات ہے؟ کہتے جی ایسی تو کوئی نہیں ہے. تو وہ بات لائیں نا جو بھرنے کی ہے, تو وہ اس کے پاس ہے نہیں, صرف الزام. ایسے ہی علماء پہ صرف الزام. میں کراچی گیا, وہاں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ مولویوں کا نام لیتے ہیں, یہ اتنے سال سے اسمبلی میں انہوں نے کون سا اسلام نافذ کیا ہے؟ میں نے اسے کہا یہ بتا تو نے مولوی کو ووٹ کتنے دیے ہیں؟ تو ووٹ دے گا یہاں اپنی بھائی برادری کو, اور پھر اس کے بعد کہے گا مولوی نے دین کے لیے کیا کیا, تو نے کتنے ووٹ دیے ہیں؟ وہ خدا کے بندے 4 5 6 مولانا کے ساتھ آپ بھیجتے ہو بندے, تو چھری دے کر یا چاقو دے کر کہتے ہو اتنا بڑا جنگل کاٹ لو. بڑے جنگل کاٹنے کے لیے چاقو کی ضرورت نہیں ہوتی, بڑے بڑے آلات کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب مکمل دین نافذ کرنا ہے نا تو اس کے لیے پوری طاقت دینا ہوتی ہے, لیکن کمال ہے ان کی, انہوں نے اس چاقو سے ہی دین کا تحفظ کیا جیسے کرنے کا حق ہے. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا